Good evening, everyone. Welcome back to Spoken English on Exampur channel. I'm your trainer, Vishal was, and I hope all of you are doing great. Rani Rajput ji, you're writing something, but Priya says, sir, ready nahi hai. Wait karo. No, I'm ready. I'm here, dear. Hi, Devendra Nayak ji, Priya ji, Preeti ji, everyone. Good evening. Yes, so great to see you all. And I hope you had the blast on Valentine's Day if you had one. Okay, I don't know, so I'm just wishing you guys, if you had the great Valentine's, I hope you understand what is Valentine's Day. It's not just hanging out with your close friends or something. It has some deeper meaning that I'll like to share with you some information about Valentine's Day, because this is what our immediate surrounding is all about, है ना. आज हम वैलेंटाइंस डे के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, कुछ वोकैबुलरी वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइप हो गया है, हर साल हम लोग बनाते हैं इसको. So yes, lots of hearts. I can see lots of heart, Ajay Mishra ji. Right. So you are in love. It looks like you are in love. Hi sir. Hi Arman ji. It's Airman Himanshu. Okay. Hi Himanshu ji. All right, Adarsh Shukla ji. Hi, how are you? So we all are in love, sometimes we are in love with our mother, sometimes we are in love with our father, with the children, with our friends, girlfriends, boyfriends, wife, husbands. So it's all about love, right? But today's session is dedicated to Valentine's Day, and I'll be doing that. Whenever we'll have any festival, we'll read about those festivals, because we need to have words, vocabulary, and phrases to talk about those festivals. That's what our immediate surrounding is all about. Am I right? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द कैसे हैं जिनके बारे में हमें बातें करनी होती है. और वैलेंटाइंस डे एक टॉपिक है, जनरली हम बात करते हैं. सो लेट्स फिगर आउट व्हाट इज वैलेंटाइन डे इज ऑल अबाउट. तो I brought some information about Valentine's Day and some vocabulary that I want to share with you today. So let's understand first, what is Valentine's Day? Okay. So I'm going to read about Valentine's Day today. I'm going to update you that why and how and what story is there behind this great festival of love. Okay. Happy Basant Panchami, right? Airman Himanshu ji, happy Basant Panchami. आज बसंत पंचमी भी है. माता सरस्वती जी की पूजा करिए and pray करिए that your intelligence increase. ठीक है, right? तो हम लोग बसंत पंचमी के ऊपर भी एक क्लास कर लेंगे. We'll read about बसंत पंचमी also in the next class. All right, because that's what we talk about, है ना. हम लोग यही तो बातें करते हैं ना एक दूसरे से. So we talk about festivals, we talk about hobbies, we talk about neighbors, we talk about travel. So that's what I brought you guys. Okay, आज हालांकि हमने टॉपिक ट्रेवल ही डाला है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन लिसनिंग ड्रिल ऑन ट्रेवल. ठीक है, लेकिन सडनली आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग वैलेंटाइंस डे, तो मैंने एंड मूवमेंट पर ये प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया. अच्छा, एंड मूवमेंट अगर इंग्लिश में मुझे बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? देखिए, इंग्लिश सीखते रहिए, है ना, हर बात पर. तो कोई काम जब हम एंड मूवमेंट पे करते हैं तो हम कौन सा फ्रेज यूज कर सकते हैं? बच्चा, एक फ्रेज दे रहा हूं, अक्सर आप इस फ्रेज को देखेंगे, एडवर्टीजमेंट में भी बहुत यूज होता है. इसको बोलते हैं एट एन 11th आवर. एट एन 11th आवर, आवर या आर बोलिए, है ना. इट्स HOUR, जो 1 घंटा 2 घंटे वाला जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन आर होता है. ठीक है, ऑल राइट. सो I don't understand it. SKHT Gulshan ji, I didn't get what you're trying to say. Okay. Hello Shweta ji. All right. So at an 11th hour means at the last moment. जब आप कोई चीज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करते हैं, जैसा कि मैंने आज किया. हाँ, I gave the technical team topic travel, but I change it at an 11th hour, and I thought of doing Valentine's Day today, but I have one listening drill for you guys on travel, so don't worry about it. So use this phrase at an 11th hour when you do something at the
last moment. Okay, you can see this phrases in many advertisements and hoarding outside on the road, like service at an 11th hour. I saw one of the hoardings on the road of MotoGP. I think it's a service center for bike or cars or whatever, I don't know, but they say service at an 11th hour. Okay, and then I have heard insurance companies are using this phrase, insurance at an 11th hours, because people usually people forget about renewing their insurance policy, and most of the people do the insurance on the due date only. So that's why such services are there, that you can have the insurance at an 11th hour. ठीक है, तो जो भी काम आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे करते हैं तो उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं at an 11th hour. आई होप फ्रेज आपको समझ में आ गया और आप यूज करेंगे. और देखिए इसके पीछे इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूं. इसको ऐसे याद कर लो भाई, जो वॉच होती है हमारी, है ना, उसमें 12 होता है, 11th आता है. तो देखिए वॉच जो है वो 12 पे फिनिश हो जाती है, तो 11th आवर पर आप कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे आप कुछ कर रहे हैं. So if you do something at the end, I think, and Indians have this habit. Most of the Indians have this habit. है ना, we are lazy people. हम आराम से करते हैं सारे काम. तो जब बिल्कुल एंड ड्यू डेट आ जाती है, बिल्कुल टाइम आ जाता है काम करने का, तब हम चलते हैं करने के लिए. So that's what it is called at an 11th hour. All right. So let's move on to our PPT. Valentine's Day. So let's read about Valentine's Day. I can do the step of Shah Rukh Khan. All right. Okay. So about Valentine's Day, let me read and update your knowledge about this day. It's a very beautiful day, but some people have misunderstood it, and they have kept it only to propose a girl or hanging out with the girl or something. It's not that, just that. It's more. It's more pure. It's sacred. It's not about just sharing feelings or something. It's far more. Let's read about Valentine's Day. So Valentine's Day, also called Saint Valentine's Day. So first of all, Valentine was the name of a saint. एक संत, एक महात्मा का नाम था. ठीक है, वैलेंटाइन एक संत का नाम था जिनके नाम पर ये दिन हम बना रहे हैं. ठीक है. Or the feast of Saint Valentine is celebrated annually on February 14th. 14 फरवरी को मनाया जाता है, और एक संत थे जिनका नाम था वैलेंटाइन, उनकी याद में मनाया जाता है. It originated as a Christian feast day honoring one or two early Christian martyrs named Saint Valentine, and through later folk traditions has become a significant culture, religious and commercial celebration of romance and love in many regions of the world. तो actually martyr का मतलब होता है शहीद. तो जो सेंट वैलेंटाइन थे ना, वो शहीद हुए थे अपने देश के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए. तो वो शहीद हुए थे, इसीलिए उनके नाम पर ये दिन बनाया गया. आप सोचो इस नाम को लव से क्यों कनेक्ट करा, रोमांस से क्यों कनेक्ट कर दिया. ठीक है, लव और रोमांस कहां से आ गया भाई? वो कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए उन्होंने अपनी मार्टियर मतलब शहीद हो गए वो. ठीक है, तो शहीद हो गए, और वो एकदम से उनका नाम जो है वो प्यार के दिन में क्यों कन्वर्ट हुआ. लेट्स रीड अबाउट इट. इसके बारे में भी पढ़ते हैं. So there are a number of martyrdom stories associated with various Valentines connected to February 14th. बहुत सारी स्टोरीज बताई जाती हैं कि हमारे पास बहुत सारी मार्टियरडम स्टोरीज हैं, मतलब शहीदी के ऊपर हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, including an account of the imprisonment of Saint Valentine of Rome for ministering to Christians persecuted under the Roman Empire in the 3rd century. एक कहानी यहाँ पर आपको बताने जा रहा है, 3rd century की कहानी है, जब सेंट वैलेंटाइन जो है वो जेल में थे. इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सजा काट रहे थे अपनी. ठीक है, रोमन्स एम्पायर में उनको सजा मिली थी. अकॉर्डिंग टू एन अर्ली ट्रेडिशन, सेंट वैलेंटाइन रीस्टोर्ड साइट टू द ब्लाइंड डॉटर ऑफ हिज जेलर. ये कहानी आती है कि जो सेंट वैलेंटाइंस डे, उनके पास इतनी पावर थी कि वहां के जेलर की अंधी बेटी की आंखें उन्होंने ला दी थी. ठीक है, तो अंधी बेटी की आंखें उन्होंने वापस ला दी थी. सेंट थे ना, तो कुछ मैजिक पावर होंगी उनके पास. Numerous later additions to the legend have better related it to the theme of love. और भी काफी सारी कहानियां आई हैं जिन्होंने इसको, स्पेशली 18th सेंचुरी जो है, उन्होंने इसको लव से कैसे कनेक्ट करा है, देखते हैं.
ठीक है. An 18th century embellishment to the legend claims he wrote the jailer's daughter a letter signed Your Valentine as a farewell before his execution. Another edition points that Saint Valentine performed weddings of Christian soldiers who were forbidden to marry. यहां से शुरू होता है वैलेंटाइन जो सेंट थे उनके नाम पर लव और रोमांस का दिन बनाना, क्योंकि उन्होंने एक जो सोल्जर्स थे, क्रिश्चियन सोल्जर्स, जिनको शादी करना अलाउड नहीं था, उनकी शादी भी करा दी थी. तो दो कहानियां यहां पर आपने देखी. एक तो अंधी बेटी की आंखें ला दी, तो प्यार है ना, यहां पर बेटी का प्यार, माता पिता के प्रति प्यार, एक संत का जो अपने भक्तों के प्रति प्यार है. दूसरा फिर उन्होंने सोल्जर जिनकी शादियां नहीं हो सकती तो उनकी शादियां करा दी. तो ये देखा गया कि he was one of the saints who was devoted towards serving people with love, care. तो इस वजह से उनके इस दिन को हम लोग प्यार के दिन से बनाने लगे. और भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अवेलेबल है. ठीक है, तो रीडिंग आप अपने आप भी कर सकते हैं. सो आई लीव इट टू यू टू रीड मोर अबाउट Valentine's Day. Okay, so let's move on. I just wanted to share with you guys this interesting story that Valentine's Day is a very sacred, है ना, पवित्र. sacred का मतलब होता है पवित्र, प्योर दिन है. कुछ लोगों की मेंटालिटी इस दिन को लेकर बहुत ही डर्टी है. That's I hate about it. It's a very pure day, so celebrate it with joy and feelings. Okay, and do take care of your culture as well. All right, so let me नो शो कहां से चलेगा? फाइल में इसको ओके. ऑल राइट, सो लेट्स one more new thing today. I want you guys to love, sorry, I see love is coming out, to learn how to talk about telling time, है ना. घड़ी देखकर इंग्लिश में समय कैसे बताएं, ये मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं. ठीक है, तो मैंने क्वाइट मिक्स कर दिया है आज. ठीक है ना, तो यू विल बी हैविंग ट्रैवल से रिलेटेड एक लिस्टिंग ड्रिल करेंगे. वैलेंटाइंस डे आपने देखा, और अब मैं आपको टाइम देखना सिखा रहा हूं इंग्लिश में, हाउ टू टेल टाइम. देखिए, सो यू कैन सी दिस वॉच हियर, दिस क्लॉक हियर, एंड इफ इट इज 12 यू विल से इट्स 12 o'clock. ठीक है, अब 12:05 हो गए तो आप बोलेंगे इट्स 5:05, तो आप बोलेंगे इट्स 5 past 5. मान लो 12:05 हो गए हैं तो आप बोलोगे इट्स 5 past 12. 10:05 हो गए हैं तो आप बोलोगे इट्स 5 past 10. ठीक है, तो जितने भी मिनट निकल चुके हैं उनके लिए आप पास्ट वर्ड यूज करो, और फिर जो टाइम आप बता रहे हो जिस नंबर का, वो नंबर यहां पर डाल दो. जैसे मान लो 12:10 हो गए हैं तो मैं बोलूंगा इट्स 10 past 12, है ना. 2:10 हो गए हैं तो इट्स 10 past 2. ठीक है, तो पास्ट वर्ड का यूज करना है जितने भी मिनट पास्ट हो चुके हैं. अमजद अली जी बोल रहे हैं सर, आई डोंट वांट टू नो अबाउट वैलेंटाइन. व्हाई डोंट यू वांट टू नो अबाउट वैलेंटाइन, अमजद अली जी? सी, वेदर you celebrate this or not, it's up to you, but because you're learning language, so it's very important that you know the words and phrases used to talk about Valentine's, since people will be interested in talking to you about Valentine's, although you can avoid them, but since we are learning English, you must know the meanings of the words used to talk about Valentine's Day. I'm absolutely fine with that, whether you like it or not, it's your personal decision, but I want to teach you the words and phrases used for it, right? So it's 16 past 5. Yes, you can say it's 16 past 5. It's past 5 past 17. Yes, you can even use those numbers. Okay, quarter. 15 मिनट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4, और हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं. वी हैव 60 मिनट्स, सो 1/4 ऑफ 60 मिनट्स इज 15 मिनट्स. तो 15 मिनट जब भी पास्ट हो जाएं तो उसके लिए आप सिर्फ क्वार्टर वर्ड बोलेंगे. उसके लिए फिर आपको 15 मिनट्स पास्ट नहीं बोलना है. यानी कि अगर 12:15 हो रहे हैं
तो मैं बोलूंगा इट्स, देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, इट्स 12:15, इट्स 3:15, है ना, 3:15 बज गए। जैसे हिंदी में भी आपने देखा होगा 3:15 हो गए तो क्या बोलेंगे, इट्स 4:15, 4:15 हो गए, इट्स 4:15। So this is how you tell time in English, okay? Then, तो आप देख सकते हैं यहां पर पास्ट का लिखा हुआ है। अब हाफ पर आ जाते हैं, जब 30 मिनट्स हो जाते हैं, तो हाफ ऑफ 60 is 30। तो अगर इंग्लिश में आपको किसी को बताना है कि भाई 12:30 हो गया, मतलब 12:30 बज गए हैं, सो यू विल से इट्स 12:30, ठीक है, 2:30 बज गया है, सो इट्स 2:30। तो पास्ट वर्ड आप देख रहे हैं, जो टाइम ऊपर हो जा रहा है, निकल जा रहा है, उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट्स, यहां पर जब मिनट्स में आएंगे तो आप बोल देंगे इट्स 5:12, इट्स 12:15, एंड देन इट्स 12:30। डन। सो मिनट्स 5, 7, 10 मिनट्स तक आप ऐसे बोलेंगे। 15 मिनट्स आ जाए तो क्वार्टर्स बोलना है, 20, 25 आएगा तो 20, 25 बोलना पड़ेगा, 30 होते ही आप हाफ पास्ट का यूज करेंगे। तो इस तरफ का हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जब बजने वाले होते हैं, है ना, 10 मिनट हैं अभी 12 बजने में, तो आपने पास्ट की जगह टू का यूज करना है। तो अगर 12 बजने में 5 मिनट हैं, मुझे ऐसे टाइम बताना है किसी को, तो मैं बोलूंगा इट्स 5 to 12, है ना, इट्स 5 to 12। उसी तरीके से इट्स 5 to 11, 11 बजने में 5 मिनट है ना। मान लो 2 बजने में 10 मिनट है, तो मैं बोलूंगा इट्स 10 to 2, ठीक है। 3 बजने में 10 मिनट है, इट्स 10 to 3। अब आ जाते हैं अपने 15 मिनट पर। अगर 15 मिनट है तो क्या बोलेंगे, 12 बजने में 15 मिनट है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स 1:45, इट्स 1:45, है ना। 12:15, 12 बजकर 15 मिनट, 12:15 हो गए। 12 बजने में 15 मिनट है तो इट्स 1:45, ठीक है, क्योंकि 2 हमें डेस्टिनेशन पर लेके जाता है और पास्ट बताता है कि कुछ हो गया है, ठीक है। इन द सेम वे, अगर आधा घंटा रह रहा हो तो आप बोल सकते हैं इट्स 1:30। हालांकि जब 12:30 बज रहे हैं तो हाफ पास्ट ही ज्यादा बोला जाता है, वहां पर 2 का यूज आप देखेंगे नहीं, क्योंकि 12:30 का मतलब यही है ना कि 30 मिनट है 1 बजने में, तो वो ऐसे मत बोलो 30 मिनट है 1 बजने में, वो 12:30 ही बोला जाता है, तो वहां पर पास्ट वर्ड का ही यूज करेंगे, ठीक है। May you provide me PDF? What kind of PDF you are asking, Ajmad Ali ji? What kind of PDF are you talking about? Tell me first, what kind of PDF you want? Okay, so let's move on to the words and phrases used to talk about Valentine's Day. Okay, and it's again, I would like to share with you, it's all your personal decision whether you would like to celebrate it or not. I just want to share the vocabulary with you so that even if people talk about Valentine's, so you have the words and sentences with you. Okay, so this is, here we have some phrases. Can we see the last line? Right, almost. Okay. So will you like to go out with me? If you want to ask somebody to have a date with you, okay, or to be your Valentine, so you can say would you like to go out with me? ठीक है, किसी को खाने पर ले जाना है, डेट पर ले जाना है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं would you like to go out with me? Okay. सेरेंडे, ये वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल है ना, बहुत पुराना वर्ड है, बहुत ही रोमांटिक लोग जो होते हैं उनके लिए यूज होता है ये वर्ड। सो यू विल हार्डली हियर इट, स्पोकन इंग्लिश में कम यूज होता है, राइटिंग में ज्यादा यूज होता है, लिटरेचर के अंदर, ठीक है। ओके, देन वी हैव टेबल फॉर 2। सो इफ यू ऑर्डर in some restaurant, if you book your table, so you can say I want to book a table for 2. Okay, candlelight dinner, you must have heard it, people do this candlelight dinner, है ना, normal light नहीं जलाते हैं, candle lights में dinner करते हैं, so that's kind of romantic thing. To get engaged,
एंगेज्ड हो जाना मतलब सगाई कर लेना, शादी से पहले एक छोटा सा फॉर्मेलिटी होता है। एंगेजमेंट रिंग आपने सुना होगा। फियांसे, फियांसे होते हैं जिनसे हम शादी करने वाले हैं। एक होता है फियांसी और एक होता है फियांसे। मेल है तो फियांसे और फीमेल है तो फियांसी, ठीक है। जो होने वाले, टू बी हस्बैंड और टू बी वाइफ, होने वालों को कैसे बोलते हैं? टू बी हस्बैंड और टू बी वाइफ। जो हो चुके हैं, जिनसे एक्स हो चुके हैं, आपने सुना होगा ना, एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। लेकिन अब जो होने वाले हैं उनको टू बी बोलते हैं। तो होने वाले हस्बैंड को फियांसे और होने वाली हस्बैंड वाइफ को फियांसी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट थ्रॉब का यूज भी रोमांटिक लोगों के लिए किया जाता है। दीज आर अ लिटिल टेक्निकल एंड रेयरली स्पोकन फ्रेजेस। ये हार्ट थ्रॉब और सरेंडे आपको उतना नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दोस वर्ड्स। नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम वर्ड्स दैट आई वांट यू गाइस टू quickly go through these words. Let's do this today. Just quickly go through these words. जैसे यहां पर पहला वर्ड है हमारा admirer, ठीक है। admirer कौन होता है? जो किसी को बहुत प्यार करता है, किसी को बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको admirer बोलते हैं। So if you love somebody and if you follow somebody, if you like somebody, so you are an admirer, ठीक है। और मैं वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अफेक्शन वर्ड आप जानिए, है ना। हमें अफेक्शन होता है मतलब अट्रैक्शन होता है किसी से, तो अफेक्शन अट्रैक्शन वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एंजल वर्ड आप यूज कर सकते हैं, है ना। यू कैन कॉल समबडी एंजल, छोटे बच्चे को एंजल बोल सकते हैं। बैलून्स तो आई होप आपको पता होगा। ब्यूटी, बिलव्ड, तो ये सब। बुके वर्ड नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, बुके, BOUQUET, बुके बोलते हैं इसको। इस वर्ड का स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन, लेकिन बुके होता है। लुक एट हियर, BOUQUET, बुके। तो बुके क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता। हम शादी में भी जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं, या ऑब्वियसली अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो बुके देते हैं, या नॉर्मल किसी भी फंक्शन में किसी को भी बुके दे सकते हैं, ठीक है। देन आई वांट यू गाइस टू जस्ट गो थ्रू द लिस्ट। कैंडी, कार्ड, ठीक है, कार्नेशन, चार्म्ड, चेरिश, हाँ। ये कार्नेशंस जो होते हैं ये फ्लावर्स होते हैं। सो इफ यू आर बाइंग फ्लावर्स, सो यू नो सम नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, है ना। अक्सर हमें पता नहीं होता, वहां पर लिखा होता है कार्नेशन। तो कार्नेशन जो है फ्लावर्स होते हैं। आप लोगों को ये इमेज आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जो है बो और एरो लेकर प्यार का तीर मार रहा है, जिससे लोगों को प्यार हो जाता है, तो उसको बच्चा क्यूपिड बोलते हैं, ठीक है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं बो और एरो के साथ, इसको क्यूपिड बोलते हैं। ये ग्रीक और ग्रीक की मैथोलॉजीज में ऐसा माना जाता है कि ये भगवान के नाम थे। क्यूपिड हो गया, इरोस हो गया, ठीक है। इसको चेरब बोलते हैं। ये जो छोटा सा बच्चा आप एंजल की तरह देखते हैं ना, पीछे विंग्स होते हैं, इसको चेरब बोलते हैं, CHERUB, ये वाला जो वर्ड है चेरब, ठीक है। सो यू विल सी दीज वर्ड, यू विल हियर दीज वर्ड इफ यू स्पीक टू सम नेटिव स्पीकर्स, है ना। तो वैलेंटाइंस डे के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं जैसा आप फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। डेकोरेट आपको पता ही है। डार्लिंग वर्ड भी प्यार से एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एम्ब्रेस माने गले लगना होता है। एनामर्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट हो जाना किसी से, ठीक है। और एनवेलोप आपको पता ही है। इरोस, देखिए इरोस भी, ये छोटा बच्चा जो है वो क्यूपिड है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इरोस है। ये ना भगवान के नाम है वहां के, ग्रीक मैथोलॉजीज और जो मैथोलॉजीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, उनमें ये भगवानों के नाम है। तो भगवान जो है वो आपको तीर मार के प्यार करवाते हैं। सम स्टोरी इज देयर लाइक दैट। फॉल इन लव इज अ वेरी कॉमन फ्रेज। मैं चाहता हूं आप फॉल इन लव जाने, है ना। तो जब किसी को ऐसे बोलते हैं कि उसको प्यार हो गया है, तो ही हैज फॉलन इन लव, प्यार में गिर गया है। अब हिंदी मत बनाइए, फॉल इन लव मीन्स प्यार हो गया है, ठीक है। फ्लर्ट वर्ड आपको पता होगा, अच्छा होता है फ्लर्टिंग, ठीक है, जब तक वो लिमिट में है। तो आप थोड़ा हंसी मजाक करते हैं किसी के साथ, तो दैट्स फ्लर्टिंग बिकॉज यू लाइक इट। आपको अच्छा लगता है कोई, तो आप उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो दैट्स व्हाट फ्लर्टिंग मीन्स, ठीक है। फ्लावर तो वर्ड आपको पता ही होगा, ठीक है। गिफ्ट, गर्लफ्रेंड, ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत दिए जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा यूजली प्यार से गर्लफ्रेंड के लिए लोग या वाइफ के लिए लोग हनी वर्ड का यूज भी करते हैं इंग्लिश कल्चर में। इंडिया में नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश कल्चर में हनी वर्ड का यूज हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। हे हनी आई एम होम। आप हॉलीवुड मूवीज अगर देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस आपको सुनने को मिल जाएंगे, ठीक है।
सो लाइक, लव, लव बर्ड्स बोलते हैं ना, कपल्स जो होते हैं, कपल्स वर्ड सुना होगा आपने, तो कपल्स जो हैं वो लव बर्ड्स होते हैं, ठीक है। पैशन हो गया, पार्टी हो गया, रोमांस हो गया, रोमांटिक हो गया, सेंट वैलेंटाइन हो गया, स्वीट हार्ट हो गया, ठीक है। और ट्यूलिप भी एक फ्लावर होता है, ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट. सो आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू go through these words about Valentine's. So now you know that, if somebody is talking about Valentine's, so you have the knowledge why Valentine's is celebrated, what is the story behind it, and a few words to use. Like, I just want you guys to pay more attention to Cupid, the small child with the bow and arrow. बो धनुष को बोलते हैं, एरो तीर को बोलते हैं, वो प्यार का तीर माता है. एरोस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द बॉय हिटिंग द लव एरो, ठीक है. तो ये सब थोड़े से वर्ड्स हैं जो वैलेंटाइंस के बारे में आपको पता होने चाहिए. ओके, नाउ आई वांट यू गाइस टू डू वन लिसनिंग ड्रिल. एक लिसनिंग ड्रिल करेंगे जिसमें आपको मैं एक अनाउंसमेंट सुनाना चाहता हूं कि जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं तो कैसे अनाउंसमेंट होती है, ठीक है. सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे आज, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू डू वैलेंटाइंस. तो ट्रैवल में मैं एक छोटा सा ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ. प्लीज़ इसको सुनेंगे ध्यान से और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. 2 बार प्ले करूँगा, ठीक है. चलिए, सो बी रेडी, बी ऑल ईयर्स. आई एम गोइंग टू प्ले दिस ऑडियो. लिसन टू इट केयरफुली. Pre-boarding announcement. Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for flight 147A to Cochin. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time. Thank you. Final boarding announcement. This is the final boarding call for passengers Sunil and Mahima Painter booked on flight 372A to Mumbai. Please proceed to gate number 3 immediately. The final checks are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately 5 minutes time. I repeat, this is the final boarding call for Sunil and Mahima Painter. Thank you. Okay, so I hope the announcement is clear to everyone. All right, I'll play the audio again. I want you guys to understand what it says, and if you have any doubt, you can ask me. Okay, I'm going to play the audio once again. Listen to it. Pre-boarding announcement. Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for flight 147A to Cochin. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time. Thank you. Final boarding announcement. This is the final boarding call for passengers Sunil and Mahima Painter booked on flight 372A to Mumbai. Please proceed to gate number 3 immediately. The final checks are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately 5 minutes time. I repeat, this is the final boarding call for Sunil and Mahima Painter. Thank you. Okay, so what we understood in the audio is an announcement of the flight at the railway at the airport, where they announced for the pre-boarding, which is specially done for the people who need some assistance, है ना. जैसे छोटे बच्चों को थोड़ा assistance चाहिए या कोई special disabled है, handicapped है, उनका हो गया, है ना. तो जिनको special assistance चाहिए उनको वो पहले ले जाते हैं, ठीक है. और प्री बोर्डिंग पासेस भी आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे होते हैं और फिर रेगुलर बोर्डिंग बाकी लोगों की स्टार्ट हो जाती है. और फिर एक अनाउंसमेंट जो है सुनील और महिमा जी की गई कि भाई आपकी फाइनल अनाउंसमेंट है, अपनी आकर फ्लाइट को अटेंड करिए.
ठीक है, तो आज का स्पोकन सेशन और लिसनिंग ड्रिल यहीं पर रहता है. लेट मी टॉक अबाउट सम ग्रामर टुडे. आज थोड़ा सा मैं ग्रामर की बात करना चाहता हूँ. वी वर डूइंग टेंसेस, हम टेंसेस मॉडल्स पढ़ रहे थे. मॉडल्स में मैंने आपको हैड बेटर पढ़ाया था, मे, माइट, कैन, कुड हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया था. ठीक है, यूज टू डिस्कस कर लिया था. तो टेंसेस और मॉडल्स के बाद हमारा जो ग्रामर में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा एक्टिव पैसिव वॉइस. तो आज मैं आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस बताता हूं. ठीक है, देखिए उसका एक्टिव वॉइस आप सबको पता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 प्लस S और ES and object, because when we speak English we need a little bit of help of the grammar as well. ठीक है, और आपको पता है इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है डू और डज से. ठीक है, हिंदी होती है ता है, ती है, ते है, जाता है, खाता है, पीता है. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं हिंदी में, उनको हम बनाते हैं. तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस. अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे? देखिए पैसिव वॉइस कुछ अलग चीज नहीं है. पैसिव वॉइस में क्या है, एक ही सेंटेंस को बोलने का एक दूसरा तरीका है. तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट को आगे उठाकर लाना होता है और प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, इसीलिए इस एम और आर लगा देंगे. अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन ठीक है थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा देंगे. तो एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं. वाई डू वी प्रेफर पैसिव वॉइस? बिकॉज वी वांट टू एम्फसाइज ऑन एक्शंस रादर देन द डूअर. पैसिव वॉइस का यूज हम जब करते हैं जब हम काम पर ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, सब्जेक्ट पर नहीं. कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप एक बार रूल नोट कर लो या रूल का स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, या वीडियो भी देख सकते हैं बार बार. तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 और S और ES हम एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेंसेस. तो आप चाहे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है टेंसेस की वो देख सकते हैं. और फिर उसका पैसिव वर्जन, उसमें ऑब्जेक्ट को, ये जो पीछे है इसको उठाकर आगे लाना होता है. तो स्पोकन इंग्लिश में भी हम एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइसेस का यूज करते हैं. ठीक है, तो यू नीड दिस टॉपिक फॉर स्पोकन इंग्लिश. बिगनर्स लेवल पे आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए. सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. ठीक है, if you do not have environment, Mr. Ali, create it. Talk to yourself in English. Make your own videos. Put the camera on tripod and speak on some topics. And listen to the people speaking English. Listen to the speeches. Listen to the people speaking. There are lots of story reading activities are available on different apps and videos. और जो हमारी वीडियो वो भी देख लो भाई, उसमें भी हम बोल रहे हैं, सुना रहे हैं इंग्लिश. सो ग्रेजुअली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट. डोंट बी इम्पेशेंट. ठीक है, उतावलापन नहीं होना चाहिए. ठीक है, ठहराव रखिए. बी पेशेंट. लर्निंग हैपेंस ग्रेजुअली. बट इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, अगर आप लगातार करते रहेंगे ना डेली बेसिस पे, then you will see the changes. What actually happens with learners when they try to learn spoken English, they learn English for a week or 10 days and after that they start skipping the sessions. वो 10-12 दिन में ही उनका सारा जोश ठंडा हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और फिर वो स्किप करने लगे. फिर कभी चला लिया, देख लिया. नहीं, you have to be consistent and persistent. If you want to see some results and changes, be regular. रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखते रहिए. आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल सी द चेंजेस, बट यू गॉट टू स्टे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू गॉट टू बी रेगुलर in your practice. Don't wait for the environment to be there. Create the environment. You can talk to some of the friends who really want to learn English. Why don't you come over, have chats in English. Or if not, please listen to the people who are speaking English. Watch videos like this. There are more content available. So read English. Okay, you can do a lot of things to improve. All right, let me give you some examples of active passive voice, present tense. For example,
I'm saying she likes ice cream. A simple present tense, उसको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है. अब इसी बात को बस मैं पैसिवली ऐसे भी बोल सकता हूं कि आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय हर. ऑल्दो इन स्पोकन इंग्लिश हम एक्टिव वॉइस का ज्यादा यूज करते हैं. एक्चुअली पैसिव वॉइस का यूज हम ज्यादातर जब करते हैं जब डूअर क्लियर नहीं होता कि कौन पसंद करता है. ठीक है, तो डूअर की क्लैरिटी नहीं होती जब स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस ज्यादा आता है. जैसे मैंने बोला पीपल स्पीक हिंदी इन दिल्ली, कि भाई दिल्ली में लोग हिंदी बोलते हैं. अब ध्यान से समझना इस बात को, भाई बोलने का काम तो लोग ही करेंगे ना. ठीक है ना, डॉग तो बोलेगा नहीं हिंदी, या कोई एनिमल कैट तो आएगी नहीं आपसे हिंदी में बात करने, इंसान ही बोलेगा ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बोला जाता है. ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बोलना ज्यादा अच्छा माना जाता है और वो नेचुरल फ्लो है. बिकॉज व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट हु विल स्पीक इंग्लिश और हु विल स्पीक हिंदी और एनी डैम लैंग्वेज, सो यू डोंट नीड द सब्जेक्ट. वहां जरूरत ही नहीं है उसे मेंशन करने की ना. तो जब हमें पता होता है कि ये काम कौन करेगा, तो उस सेंटेंसेस को हम अक्सर पैसिव में बोलते हैं. बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना हमेशा चीजों को कर्टेल करती है. कर्टेल माने छोटा छोटा करती है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में बोला करो. तो आप क्या बोलोगे, हिंदी इज स्पोकन इन दिल्ली, कि भैया दिल्ली में हिंदी बोली जाती है. तो पीपल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है. So I hope you're getting my point. Why we learn passive voice in English? Because we don't need the doer. है ना, जो काम को करता है वो ऑलरेडी हमें पता है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है. तो हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बोलते हैं. सो एक पैसिव वॉइस में आज आपको सिखा रहा हूं और आप देख रहे हैं कि इसका एक्टिव वॉइस भी आपका रिवाइज हो रहा है साथ में. सो आई एम गिविंग यू हेल लॉट ऑफ रिवीजन ऑफ द टेंसेस एंड मॉडल्स. आई डू द मॉडल्स एज वेल इन पैसिव वॉइस. So you have no excuse why you can't learn English and why you can't speak English. Okay? गुलशन शर्मा जी, डैम का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता. इट्स जस्ट आउट ऑफ फ्लो एक वर्ड आ जाता है ना. वो एम्फसाइज करता है चीज पे. ठीक है, सिर्फ एम्फसाइज करता है. जोर डालकर बोल रहे हैं किसी चीज पर तो डैम बोल देते हैं. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स डू सम नेगेटिव सेंटेंसेस. इसी के नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, she does not like ice cream. उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है. तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, आइसक्रीम is not liked by her. ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस था हमारा उसको भी ले लेते हैं. पीपल डू नॉट स्पीक हिंदी इन दिल्ली. हालांकि ऐसा है नहीं, बट वी आर डूइंग हियर ग्रामर सेंटेंसेस, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट. ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, हिंदी इज नॉट स्पोकन. से नॉट लगा दीजिए, है ना, इन दिल्ली. डोंट से बाय पीपल. ठीक है, पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस बोलना ही जब होता है जब हम डूअर को मेंशन ही नहीं करना चाहते, तो हम बोलेंगे हिंदी इज नॉट स्पोकन इन दिल्ली. ओके, आई होप यू आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस एंड getting the structure of the sentences in active and passive, both the voices of present indefinite tense. Let me give you the example of interrogative sentence as well. Does she like ice cream? क्या उसे आइसक्रीम पसंद है? तो पैसिव में कैसे पूछेंगे इसको, is ice cream
liked by her. देखो मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है तो बहुत डिटेल में पढ़ाया, वहां पर मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव, तो स्ट्रक्चर वहां बता दिए गए हैं, जिसमें मैं बार बार बताता रहा हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो पैसिव वॉइस में भी आपको ध्यान रखना है कि सेम पैटर्न चलेगा, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिंपल सिंपल, नेगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ही रहता है, ठीक है। दूसरा वाला भी ले लेते हैं, डू पीपल स्पीक हिंदी इन दिल्ली, क्या दिल्ली में लोग हिंदी बोलते हैं? तो इसका पैसिव वॉइस बना देंगे इज हिंदी spoken in Delhi. You don't need by people or anything else because हम पैसिव बोलेंगे ही जब हमें डूअर मेंशन नहीं करना। तो आज का मेन मुद्दा यही था कि पैसिव बोलते कब है, तो पैसिव जब ही बोलना है जब डूअर स्पेशल नहीं है, काम स्पेशल है। दूसरी चीज, रूल बाय रूल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इन सभी टेंसेस के एक्टिव पैसिव वॉइस करा दूंगा। सॉरी, आई फॉरगॉट द mic to put on. All right, so I hope this is going to help you learn and speak English better. Okay, so that's in today's sessions. Thank you very much guys for joining in. And किसी ने बोला था कि सर हिंदी मत बोलिए, तो गाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये बेसिक चल रहा है ना। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं प्लेटफॉर्म पर उनका बेसिक थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, तो बिगनर्स लेवल का कोर्स है बच्चा ये जो अभी चल रहा है, तो इसमें हम बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहते हैं। As soon as the time passes and we see some improvement in the students, we'll upgrade it to the English to English things later. But first we want people to get familiar with the immediate surroundings, get to know some words, get some vocabulary and learn some structure of the sentences. So that's the motive. All right guys, so see you tomorrow same time here. We'll be reading about बसंत पंचमी के बारे में भी पढ़ेंगे, हर फेस्टिवल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, सो हमारा नॉलेज भी इंक्रीज होगा। एंड दैट्स अ वैल्यू एडेड पॉइंट इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि आपको सभी फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। जैसे कि आज मैंने वैलेंटाइंस डे की स्टोरी शेयर करी, सो एटलीस्ट यू हैव द आउटपुट नाउ, यू हैव द नॉलेज कि वैलेंटाइन डे के पीछे स्टोरी क्या है। एंड यू नो दीज स्टोरीज आर वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन स्किल्स। कहीं पर आप स्पीच देते हैं तो पता नहीं कौन सी कहानी किस चीज को लिंक कर कर आप अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो दीज आर पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सो प्लीज कीप ऑन इंक्रीजिंग द knowledge of your stories. With that note, I'll take your leave. Thank you very much. I hope you enjoyed the session. I did. I always enjoyed teaching English. I love this language. I love you guys. See you tomorrow.